فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور احمد بن عبداللہ بلالہ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی کی نگرانی میں محمد سیف الدین شفیع کارپوریٹر اولڈ ملک پیٹ ڈویژن نے چرچ پاسٹر ڈسٹریبیوشن کرسمس گفٹ پروگرام کا ملک پیٹ چرچ ہائی ٹیک فنکشن ہال میں انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مقامی دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ حکومت انٹرمیڈیٹ سال اول ناکام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ حکومت سال اول امتحانات میں ناکام طلبہ کو دوبارہ پاس کرنے پر غور کر رہی، کیونکہ نتائج ناقص ہونے اور طلبہ کو کامیاب قرار دینے کے بعد امتحانات لینے کے علاوہ تاخیر سے امتحانات میں ناکام ہونے کے خلاف احتجاج اور ناراضگی کو دیکھتے ہوئے محکمہ تعلیم کے عہدیدار اس بات کا جائزہ لے رہے کہ اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ ذرائع کے مطابق سال اول ناکام طلبہ کو ازسر نو کامیاب قرار دینے کا جائزہ لینے ہدایت کے بعد عہدیداروں نے غور شروع کر دیا۔ انٹر سال اول کے نتائج پر طلبہ میں مایوسی اور NSUI و ABVP احتجاج کو خانگی کالجز انتظامیہ کی بھی تائید حاصل ہونے لگی اور طلبہ کے ساتھ کالج انتظامیہ بھی نتائج پر مایوسی کا اظہار کر رہے اور اس کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو ذمہ دار قرار دیا جانے لگا۔ کہا جا رہا ہے کہ انٹر سال اول کے طلبہ کو کامیاب قرار دینے کے بعد عہدیداروں نے ہی امتحانات کے انعقاد کی تجاویز پیش کی تھی اور حکومت کو امتحانات کے انعقاد کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ٹمس میں اومیکرون کے مریض بریانی کے لیے ترس رہے ہیں، گھر جانے کے لیے بے تاب ہیں۔ جن مریضوں نے کووڈ-19 کے اومیکرون قسم کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے وہ اب گھر جانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر میں علامات نہیں ہیں۔ تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹروں کو جہاں 24 مریض اس وقت زیر نگرانی ہیں، انہیں روکنا مشکل ہو رہا، کیونکہ ان میں سے سبھی غیر علامتی اور گھر جانے کے خواہش مند ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بے تابی سے گھر جانے کا انتظار کر رہے تھے وہ بریانی، مٹھائیوں اور خصوصی پکوانوں کے لیے ترس رہے تھے۔ ایک ڈائریکٹر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو دیا جانے والا کوئی بھی علاج انہیں پریشان کر رہا۔ اگر RT-PCR ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو خطرے میں ممالک سے واپس آنے والے مسافروں کے نمونے جینوم کی ترتیب کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ منفی ٹیسٹ کرنے والوں کو گھر میں قرنطینہ کا مشورہ دیا جاتا ہے اور دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اومیکرون مثبت مریضوں کو ٹمس میں داخل کیا جاتا ہے اور انہیں سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ ریاست میں اب تک 24 اومیکرون مثبت مریضوں کی اطلاع ملی ہے۔ 19 ایسے ممالک سے حیدرآباد آئے ہیں جنہیں خطرے میں قرار نہیں دیا گیا۔ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرا ریڈی کے ہاتھوں 160 CCTV کیمرے کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ کیمرے زمزم کلر بسم اللہ کالونی سعادت نگر کے ایریے میں لگائے گئے۔ اس موقع پر رچاکنڈا کمشنر مہیش بھاگوت IPS، DCP LB نگر سنپریت سنگھ IPS، ACP ونستھلی پورم کے پرشوتم ریڈی، سرکل انسپکٹر B بھاسکر کے علاوہ SI پولیس اسٹاف اور دیگر بھی موجود تھے۔ سر سینٹر میں سر آج بالاپور پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرا ریڈی میڈم کے ہاتھ سے آج 116 کیمروں کا اناگریشن یہاں پہ ہوا ہے۔ یہ جو پورے کالونیز ہے اس ایریا میں
खासकर न्यू रॉयल कॉलोनी हो, जमजम हो, कोत्तापेटा हो, सादत नगर, बिस्मिल्ला कॉलोनी, ये सब कॉलोनीज कवर करते हुए ये कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, 24/7 पुलिस स्टेशन से लाइव मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद एक कंट्रोल रूम को भी ये कैमरा कनेक्ट किए जाएंगे। ये कैमरा के होने से हमारा जो ये एरिया में खासकर जो क्राइम कंट्रोल है उसके लिए काफ़ी हमें फैसिलिटी मिलेगी। ये जो अच्छा काम यहाँ के जो डोनर सामने आए उन सब डोनर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग सामने आए करके आज हम यहाँ कैमरा लगा पाए। उनके साथ साथ जो डोनेशन जिन्होंने दिया वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 10 लाख रुपया और हमारे TCS आदि बटला कंपनी उन्होंने भी 11 लाख रुपए दिया हमारे सोसाइटी साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे प्रोग्राम में खासकर मैडम का यहाँ आना, मैडम के हाथ से ये कैमरा। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद में मलकपेट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्पेशल ड्राइव के तहत ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस मौके पर नशे में धुत होकर गाड़ियां चलाने वालों की जांच की गई और उन पर चालानात भी आयद किए गए। इसके अलावा गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जांच की गई। मुल्क में कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के 15 रियासतों में कुल 213 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 90 को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 57 केसेस हैं। महाराष्ट्र में 54 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 57,05,039 कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुबह 7 बजे तक 138,95,90,670 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 6,317 नए केसेस सामने आए। मुल्क में अभी 78,190 कोविड मरीज ज़र इलाज हैं। ये केसेस का 0.22% है। इसी दौरान 6,906 लोगों को कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,42,01,996 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। शिफायाबी की शरह 98.40% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,29,512 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 66,73,61,171 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में 57 केसेस ओमिक्रॉन के हैं। महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरला में 15, गुजरात में 14, जम्मू कश्मीर यूटी में 3, ओडिशा में 2, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, तमिलनाडु में 1, वेस्ट बंगाल में 1 केस है। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल में तेजी के बावजूद आज मुसलसल 48वें दिन भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रहीं। दिल्ली में गुज़िश्ता 2 दिसंबर को VAT में कमी करने की वजह से पेट्रोल की कीमत तकरीबन 8 रुपए फी लीटर कम हुई थी और इसके बाद से दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे फी लीटर और डीजल 86 रुपए 66 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम है। आज सिंगापुर में लंदन ब्रेनेट क्रूड 0.34% इजाफे के साथ $74.23 फी बैरल और US क्रूड 0.45% की कमी के साथ $7.44 कारोबार कर रहा। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बालतरतीब 5 रुपए और 10 रुपए फी लीटर की कमी करने से मुल्क में इसकी कीमतों में कमी आई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत मुल्क की 22 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों ने
इन दोनों मसनूआत पर वैल्यू एडिड टैक्स में कमी की थी। घरेलू बाजार में 48वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में वैट कम किए जाने की वजह से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंप्स पर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 41 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 67 पैसे फी लीटर पर रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का यौमिया जायजा लिया जाता है और इसकी बुनियाद पर नई कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे से लागू की जाती हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सालगिरह के मौके पर गरीबों को मकानात की फराहमी से मुतल्लिक स्कीम का आगाज किया। मगरबी गोदावरी जिले में जगन ने इम्काना पर गरीबों के हक के उन्वान से स्कीम का आगाज करके ऐलान किया कि हर गरीब को ज़ाती घर की फराहमी उनका ख्वाब है। उन्होंने कहा है कि सालगिरह के मौके पर तकरीबन 50,000 इस्तेफादा कुरिंदगान को स्कीम के दायरे में शामिल करने पर उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा है कि हर गरीब का ख्वाब ज़ाती घर का हुसूल होता है। घर का मतलब स्टील और ईंट से तामीर करदा इमारत नहीं बल्कि समाज में बेहतर मुकाम के साथ सहारे की फराहमी है। उन्होंने कहा है कि हाउसिंग स्कीम के तहत रियासत में 16,000 करोड़ के कर्ज माफ किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि कर्जों की माफी के सबब गरीब आवाम अपने घर को जाती घर में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए मकानात से 55 लाख अफराद को मकानात पर मलकियत का हक नहीं है। हुकूमत मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम कर रही। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि स्कीम को उगादी त्यौहार तक तोसी दी जाएगी। जगन मोहन रेड्डी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गरीबों के लिए इस कदर अच्छे काम अंजाम दिए जाने पर बाज अफराद के पेट में दर्द क्यों हो रहा, वो गरीबों की भलाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के खौफ से फलाही स्कीमात को नहीं रोकेगी। 26,000 करोड़ के खर्च से 31 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के दरमियान इदगाम का मुआहदा तय पाया। इसके तहत जी एंटरटेनमेंट का सोनी पिक्चर्स में इदगाम किया जाएगा। दोनों कंपनियों ने आज जारी एक बयान में कहा है कि इस मुआहदे के तहत दोनों कंपनियां अपने नेटवर्क्स के साथ डिजिटल एसेट प्रोडक्शन ऑपरेशंस और प्रोग्राम लाइब्रेरियों को जम करेंगे। इदगाम के बाद जो कंपनी बनेगी उसे हिंदुस्तान में दर्ज कराने की बात कही गई है। बयान में कहा गया है कि उसके तहत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के पास 1.5 अरब डॉलर की नकद रकम होगी, जिसमें सोनी पिक्चर्स के मौजूदा प्रमोटर्स और जी के बानी प्रमोटर्स की जानिब से की जाने वाली सरमायाकारी भी शामिल है। इदगाम के वजूद में आने की वाली कंपनी में कंट्रोलिंग शेयर सोनी पिक्चर्स की पेरेंट कंपनी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंक के पास होंगे। इस कंपनी के शेयर 50.86% होंगे, जबकि जी के प्रमोटर्स के शेयर 3.99% होंगे। बकाया 45.15% शेयर्स के शेयर होल्डर्स के होंगे। पुनीत गोयंका इदगाम शुदा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, जबकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादातर डायरेक्टर सोनी ग्रुप के जरिए नामजद किए जाएंगे, जिसमें सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनपी सिंह भी शामिल होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।